और बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी, तो एक होप आया कि अगर बेनज़ीर भुट्टो अगर देश चला सकती है, एक औरत एक देश चला सकती है, तो औरतें क्रिकेट भी खेल सकती है। जब तुम्हारे पास डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट वर्क कर रहा है, किस चैलेंजेस से गुजरे हैं जस्ट टू एंश्योर दैट दे गेट टू प्ले। ये वैसे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाएगा? वीक प्लेयर्स को हटा दो। वीक प्लेयर्स को हटाना आपका काम नहीं था, उनको स्ट्रॉन्ग करना आपका काम था। यस, तो आपने सारे वीक प्लेयर्स को हटा दिया और बोल रहे हो अभी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यस। कंपटीशन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टेपिया की बहुत ही स्पेशल एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज की हमारी एपिसोड जो है वो बहुत स्पेशल इसलिए है कि आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, विच इज़ आयुष पुत्रन। ही इज़ ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। ही इज़ अ क्रिकेट राइटर, जर्नलिस्ट, and more importantly, has written a book on Pakistan women's cricket history, Unveiling Jazba. So, welcome on the show, Ayush. Thank you for having me here. So, how's your time been in Pakistan? Pretty hectic. There's a lot more to do. I want to explore as much as I can. There's just one more day left, so it's been fun. In Karachi, in Lahore, those are the two cities I've visited so far. So Okay, yeah. I'm very glad that you are having a good time. So, like, let's start from like the book. Like in subcontinent, like देखें पाकिस्तान या इंडिया, यहाँ पे वैसे भी जो ख़वातीन हैं उनको बहुत ज़्यादा हकूक़ नहीं मिलते, और उनको हर एवरी डे देयर इज़ अ स्ट्रगल फॉर देम के दे सॉर्ट ऑफ वर्क प्लेस में उनको मसले देखने पड़ते हैं और चीज़ों में मसले देखने पड़ते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक स्पोर्ट्स तो देन इट्स एन इवन बिगर स्ट्रगल, बिकॉज वो तो एक पहले से ही टैबू क्रिएटेड है। तो उसके बारे में एक तो बुक लिखना, वो आपको कहाँ से ख्याल आया? दूसरा, फिर बीइंग एन इंडियन जर्नलिस्ट राइटिंग अबाउट पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम, हाउ डिड दैट थॉट कम टू यू? First of all, I mean, just with men's cricket, it's slightly a cluttered space. बहुत लोग लिख रहे हैं, and after a point, opinion सब mix match करके वही वो 4-5 opinion आ जाते हैं. So it was not really exciting for me beyond a point to explore too deep into men's cricket in general. Women's cricket में वो थोड़ा open space मिल रहा था. There were new stories that were coming through. तो थोड़ा इंटरेस्ट था in sort of understanding women's cricket in general and kind of understanding a different view of cricket itself, because cricket literature जो लिखा गया for so many years has been about men's cricket and largely written by the English. So the perspective towards cricket itself was very narrow, that this is the only way cricket is played, these are the only problems that someone can face. So with women's cricket, I saw a new, I mean, it's sort of uh, for the curiosity bug, that was a good exploration. So whether it was with Indian women's cricket, with other women's cricket, I was exploring it. Pakistan just happened, and quite late it happened as compared to the other teams that I was into exploring. It was in 2019, and at that point I realized there was no literature on Pakistan women's cricket, so there was nothing for me to read as a just as a fan. So I thought, I was sort of excited to delve deep into it myself. तो 2019 में हुआ, व्हेन मेरे एक दोस्त थे एसन, तो वो पीसीबी के मीडिया मैनेजर बने और ही वांटेड टू सॉर्ट ऑफ प्रमोट वुमेन्स क्रिकेट। तो For all our viewers, Ashton has been on the show, so you keep watching him very often. yeah, so he wanted to promote women's cricket. He reached out to me saying, "Okay, would you want to do some stories?" So I was like, "Okay, fine, let's see." So I reached and I spoke to Bisma Maroof, Nida Dar, Nahida Khan, and Kainat Imtiaz, four cricketers from four different parts of the country, just to understand what their lives are like, how they go about things, and just to understand a bit about their cricket. So तभी some of the stories caught my attention, and I thought, why not? If there's no literature written on it, I can work on this. सो लाइक जो पाकिस्तान में वुमेंस क्रिकेट है उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा लिटरेचर एग्जिस्ट नहीं करता। उस्मान समीउद्दीन ने शायद बहुत ब्रीफली अपनी बुक के आखिरी चैप्टर में कुछ उसके बारे में लिखा है, बट उसके अलावा आपके पास कोई रिसोर्स नहीं था जब आप ये बुक लिखना आपने स्टार्ट की। तो स्पेशली लाइक एक एज एन इंडियन पहले थोड़े आईब्रोज रेज हो जाते हैं जब आप सुनते हैं कि वो एक इंडियन जर्नलिस्ट लिख रहा है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट पे लिख रहा है और पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट पे लिख रहा है, तो वो काफ़ी टैबूज जो हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं। आपने अपनी बुक में काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं, लाइक उसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं, चेयरपर्सन्स भी हैं, जर्नलिस्ट, डिफरेंट पीपल। सो हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज टू सॉर्ट ऑफ गेट ऑल पॉइंट सब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़, और उसमें जो
आपको क्या challenges पेश आए and how like satisfying it was at the end for you to compile all of this? तो ये पहले 9 महीने तो मुझे एक भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला। इनफैक्ट द फर्स्ट पहले इंसान जो थे जिनको मैं रीच आउट किया था वो तो एंड ऑफ द बुक तक उन्होंने मेरे से बात नहीं की थी। अभी रिसेंटली मेरी बात हुई बुशरा एतजाज से, उन्होंने भी कभी मुझे आंसर नहीं किया था। वो अभी बोल रही है कि मुझे तब लगा नहीं था कि तुम सीरियस हो इस चीज़ को लेकर, मुझे बस लगा कोई आ रहा है रैंडम इंसान जो इसके बारे में बात करना चाह रहा है, इसलिए वक्त नहीं दिया था। तो ऐसे थोड़े लोग थे जिन्होंने भरोसा नहीं किया था, पर काफ़ी लोग ऐसे भी थे शायद। फर्स्ट जो पर्सन थी आफिया सलाम, उनको जब पता चला उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया, फिर उन्होंने मेरे से बात की, फिर वो रीच आउट की किरण बालोच को, फिर किरण बालोच से मुझसे बात की। तो एक एक करके चेन बनता गया। जब लोग ट्रस्ट करने लगे फिर एक बहुत इजी प्रोसेस हो गया। और काफ़ी इंटरव्यूज़ 2020 और 21 पैंडमिक के दौरान हुए, जब सब घर पे बैठे थे और वक्त अच्छा नहीं चल रहा था इंडिया में, पाकिस्तान में। हम कुछ एक एक सैडनेस का एक लहर था तब। तो तभी काफ़ी सारी बातें हुई और तभी काफ़ी लोग को वैसे वो डॉट्स जॉइन होते गए, कनेक्शंस बनते गए। तो हाँ, थोड़ा मुश्किल था, पर अगेन एसन की थोड़ी हेल्प थी, वो पीसीबी में था तो काफ़ी परमिशन ईजी हो गए, पीसीबी ने परमिशन काफ़ी दे दी। तो उस वक्त काफ़ी इजी था, काफ़ी लोग ने बात नहीं भी की थी। पर जैसे सना मीर को 1.5 साल लग गए उनको, उनके पीछे पड़ के। शायज़ा खान को 2 साल तक पीछे पड़ना पड़ा कि आप बात कीजिए हमसे। तो ऐसे प्लेयर्स थे जिनके लिए थोड़ा परसिस्टेंट रहना पड़ा। पर मैं तभी वो ये सोचा नहीं कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या परसेप्शंस आ रहे हैं। यस, काफ़ी टाइम ऐसे गिव अप करने का लगा, एटलीस्ट 10 टाइम्स ऐसा लगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना है। वो डीमोटिवेशन था। पर एक चीज़ अच्छा है कि बिकॉज मेरी अर्निंग उससे नहीं होनी है, तो ये साइड प्रोजेक्ट था। वैसे भी क्रिकेट तो बंद ही था वो 2 साल, तो और कुछ करने को था नहीं, तो मैं इस पे लगा रहा। पर डाउट्स थे, पर नहीं, हो गए टुवर्ड्स द एंड। थोड़ा एक फुलफिलिंग लगा इस चीज़ को लेकर। ओके, सो अब फिर अब हम थोड़ा बुक की तरफ आते हैं। लाइक बुक स्टार्ट्स फ्रॉम द नाइन, लाइक वो एक पूरी पिक्चर पेंट करती है कि हाउ पाकिस्तान में जो वुमेन्स क्रिकेट है वो कैसे स्ट्रगल्स और क्या प्रोग्रेस फेस की। सो लाइक इसमें से लाइक जो डिफरेंट एराज थे उसमें से लाइक आपको राइटिंग के हिसाब से कौन सा एरा था जो सबसे मज़ा आया, जिसके बारे में आपको रिसर्च करके सबसे अच्छा लगा, और उसके लिखने के बारे में भी आपको लाइक बहुत अच्छी वाइब्स आई कि यार ये जो है ना, बड़ा मुझे इसमें बहुत कुछ है मेरे पास लिखने के लिए और कहने के लिए? दो स्पेसिफिक एराज, लेट 90s टू अर्ली 2000s, और उसके पहले की जो कहानी थी ज़िया उल हक की, जो एज अ हिस्ट्री बफ मुझे इतना पता नहीं था ज़िया उल हक के रेजिम में क्या हो रहा था पाकिस्तान में। तो वो एक एक्सप्लोरेशन इन इटसेल्फ कि इसमें क्रिकेट के बारे में नहीं, पर इन जनरल सोसाइटी में क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। तो उससे ज़िया के पहले भी पाकिस्तान एक कैसा मुल्क था, उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आए, उसके बाद क्या है। सो वो एरा प्योरली फ्रॉम अ हिस्ट्री पर्सपेक्टिव वो अच्छा लगा। और उसके बाद जो एरा आया शाइजा खान, जब उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा अलोंग साइड बाकी जो फैक्शंस थे जो क्रिकेट चलाना चाह रहे थे उस दौरान। तो आप जो बोल रहे थे जो चैलेंज की बात है, एक मेरा चैलेंज हट गया उस ड्यूरिंग दैट फेज। वो उसके मैंने जब शुरुआत की थी उसके उसके 3-4 महीने बाद कमिला शमसी ने एक पीस लिखा था ऑन वुमेन्स क्रिकेट। तो उसके थ्रू मुझे बहुत कुछ पता चला जो मुझे आइडिया नहीं था कि ये शाइजा खान के दौर जनरेशन में क्या चल रहा था पाकिस्तान क्रिकेट में, एंड क्या इश्यूज वो फेस कर रहे थे। तो ये दो एराज में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ज़िया के रेजिमेट जस्ट टू अंडरस्टैंड वुमेन इन सोसाइटी, वो एक पर्सपेक्टिव मिला उसके बारे में। एंड जो सेकंड ये जिस पे मुझे बहुत अच्छा लगा वाज टू अंडरस्टैंड शाइजा के इनके मोटिवेशंस क्या थे टू गो एंड प्ले क्रिकेट। जब तुम्हारे पास डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट वर्क कर रहा है। सो वो किस चैलेंजेस से गुजरे हैं जस्ट टू एंश्योर दैट दे गेट टू प्ले। एंड उसमें बिकॉज देयर वर मल्टीपल नैरेटिव्स एंड इट वाज अ कॉकटेल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत फाइट्स हो रहे हैं, देयर इज अ पैशन दैट इज ड्राइविंग यू, देयर इज
लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक, लाइफ इज एट स्टेक, तुम्हें छुपकर खेलना पड़ रहा है, तुम्हें छुपकर कंट्री से भागना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग एक ये थी, बिकॉज ऑल्सो देवर मल्टीपल नैरेटिव्स टू इट, सो एज अ स्टोरी टेलर वो इट अलाउड फॉर अ होलसम एक्सप्लेनेशन ऑफ कि क्या चल रहा था उस जनरेशन में. यस. सो अब हम थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं. ये तो थोड़ा जर्नलाइज्ड बात की थी कि आपके हिसाब से, बट अगर हम देखें तो इसको हम 3 या 4 या 5 एराज में डिवाइड कर सकते हैं. तो हम एरा बाय एरा अगर थोड़ा प्रीव्यू कर लें कि 80s में बिकॉज पाकिस्तान में एक मार्शल लॉ रजीम था और उतनी आज़ादियाँ नहीं थी, और उसमें कोई पीसीबी ने भी एज सच कोई एक्टिवली काम नहीं किया. उस टाइम पे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान होता था, जो कि बाद में पीसीबी बन गया, तो उसने भी एज सच कोई वुमेंस क्रिकेट के फ़रोग के लिए कोई काम नहीं किया. सो उसके बाद फिर कैसे जो शुरुआत कैसे हुई पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट की, अगर उसके बारे में आप थोड़ा इन्फॉर्म कर सकें व्यूअर्स को. एक वेव चला था राइट आफ्टर जिया उल हक की जब डेथ हुई थी और बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी, तो एक होप आया कि अगर बेनज़ीर भुट्टो अगर देश चला सकती है, एक औरत एक देश चला सकती है, तो औरतें क्रिकेट भी खेल सकती है. कि उसके पहले जिया के ज़माने में औरतों को बहुत चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन थी, नॉट जस्ट प्लेइंग स्पोर्ट्स. तो उस होप में शाइजा और शर्मीन की जो एग्जिस्टिंग जो सपने थे लंदन में बैठकर, वो उन्हें लगा वो मटीरियलाइज हो जाएगा इन पाकिस्तान. फाइनली एक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी बना सकते हैं और औरतें अभी खेल भी सकती है. मगर जो हुआ वो प्राइम मिनिस्टर तो बदल गई, पर ग्रास रूट पे उसकी रियलिटी नहीं बदली पाकिस्तान की उस वक्त. तो जब वो आए थे तो इमीडिएटली देवर फ्रिंज एलिमेंट्स जिन्होंने उन्हें डेथ थ्रेट्स दिया. एंड 8,000 तो पुलिस कमिश्नर ने भी कहा प्लीज़ ये गेम को ना खेले, आप ये कैंसिल कर दे, पर शाइजा खान अड़ी रही. फिर एक बारगेन रीच किया विद दोज फ्रिंज एलिमेंट्स विद द कमिश्नर, एंड फिर उन्हें अलाउ किया गया फाइनली एक गेम खेलने के लिए, मगर विद प्रोटेक्शन ऑफ अपेरेंटली 8,000 पुलिसमैन गार्डिंग दैट मैच ऑफ क्रिकेट. पर वो एक वन ऑफ इंसिडेंट था और उन्हें फिर उनके फादर ने कहा कि आप ये देश छोड़कर चले जाइए, आपके लिए यहाँ नहीं है. एंड बिकॉज दे केम फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, लंदन में थे, तो बोले कि आपको क्रिकेट खेलना है वहाँ जाकर खेल लीजिए आप. तो शाइजा गई, लेकिन बिकॉज शी न्यू कि उन्हें इंग्लैंड में कभी इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलने नहीं मिलेगा, शी वर्कड हार्ड टू एंश्योर कि मैं पाकिस्तान फिर से आ जाऊँ. उनके फादर वॉज अगेंस्ट दिस, लेकिन वो उनके फैक्ट्री में ही बैठकर, उन्होंने अपने पीएचडी प्रोग्राम को रोक दी थी, उनके फैक्ट्री में बैठकर सीक्रेटली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, बाकी कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन मंगवाए, पढ़ा, और सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करती रही अगले 3 साल तक, ताकि पाकिस्तान को एक नेशनल टीम का ये मिल जाए. एंड वो भी जब हुआ, जो फर्स्ट टूर उन्हें जाना था, बिकॉज 97 में वर्ल्ड कप आ रही थी, एंड अगर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना था तो उन्हें 3 मैचेस खेलने थे, इंटरनेशनल मैचेस. एंड ये बात मैं जानता हूँ, श्रीलंका के साथ उन्होंने जब अप्रोच किया, श्रीलंका ने मना किया, क्योंकि वो श्योर नहीं थे कि उनको खेलना है पाकिस्तान के साथ. कि श्रीलंका एक और इमर्जिंग टीम थी, उनके भी सेम रिक्वायरमेंट्स थे, पर श्रीलंका फिर भी नहीं खेली पाकिस्तान के खिलाफ. इंग्लैंड में वो नहीं जा सकती थी क्योंकि विंटर मंथ थे, तो सिर्फ उनके पास बचा वॉज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. तो वो वहाँ गए इन डिस्गाइज, कि वो एज अ क्रिकेट टीम नहीं गए, छुप कर गए थे, ताकि कोई पकड़ ना ले, फिर से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो करके वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड खेलने गए थे. Yes. There is a very good anecdote in the book that उनके जो क्रिकेट का जो जितना भी सामान था वो एज अ डिफरेंट उन्होंने कार्गो करवाया था कि ये ना किसी को पता चले सिक्योरिटी चेक पे व्हेन गोइंग टू द एयरपोर्ट दैट कि ये क्रिकेट का सामान है. सो दैट्स व्हाई वो दे बेसिकली उन्होंने उसको एक डिफरेंट रूप में भेज दिया था ताकि उनको कोई चेक ना कर सके. सो मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, लाइक आपने जिस तरह मेंशन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपने फादर की जब कंपनी में वो काम करी थी तो उन्होंने ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया था एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट पीसीबी तो तब एग्जिस्ट कर रहा था, मेंस क्रिकेट भी लाइक 90s का तो हम सब सुनते हैं कि जी पाकिस्तान की गोल्डन जनरेशन थी और एक से बढ़ के एक स्टार था. बट डिस्पाइट हैविंग पीसीबी, क्या रुकावट थी उस टाइम में कि जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड था वो क्यों वुमेन्स क्रिकेट का जो है उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा था कि वो ऑर्गेनाइज हो सके या उसको जो है सपोर्ट किया जाए ताकि वुमेन्स की टीम भी एक बन जाए. सो
उस टाइम तक एक सारे जो वुमेन्स क्रिकेट के मैचेस होते थे वो अलग बोर्ड्स रन किया करते थे अक्रॉस द वर्ल्ड। आईसीसी मेंस क्रिकेट चलाता था, आईडब्ल्यूसीसी वुमेन्स क्रिकेट चलाती थी। तो पीसीबी के अंडर तो नहीं आता था, बट काफ़ी सारे बोर्ड्स शायद ग्राउंड दे देते थे अपना, या कुछ ना कुछ एक साइड प्रोजेक्ट की तरह उनको सपोर्ट कर देते थे, पर उनका वो लुकआउट नहीं था। और इफ़ यू सी 90s का ऐसा दौर था पाकिस्तान मेंस क्रिकेट के लिए भी, उनके अलग स्कैंडल्स चल रहे थे, उनके अलग प्रॉब्लम्स चल रहे थे। ये पीटर ओबॉर्न के बुक में है, माजिद खान का कोट, कि हमारे क्रिकेट की ही इतने मसले चल रहे हैं कि हम आपके क्रिकेट को क्या सॉल्व करें। तो टिल जब तक वो शाइजा बाहर नहीं गई थी, किसको पता नहीं था कि यहाँ पे एक सीक्रेटली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा है और एक क्रिकेट टीम बन रही है। ओनली व्हेन वो बाहर गए और ये न्यूज़ आया, क्योंकि वो पहली वुमेन्स टीम थी अक्रॉस स्पोर्ट्स फॉर पाकिस्तान जो पाकिस्तान के बाहर जाकर खेल रहे थे। तो तब तक तो पीसीबी को भी नहीं पता था। उसके बाद जब ये न्यूज़ फैली, दो और बॉडीज जो 1970s में 1980s में खेला करते थे लाहौर में, वो उठे और उन्होंने क्लेम किया हम तो इनसे पहले से खेल रहे, तो हम असली हकदार है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के। और जिनमें से उनके काफ़ी सारे जो चेयरपर्सन्स थे, वो उनके कॉन्टैक्ट्स थे, कनेक्शंस थे, फैमिली कनेक्शंस और अदर कनेक्शंस इन द पीसीबी। तो पीसीबी में जो अब एडमिनिस्ट्रेटर बन रहा था, वो एक राइवल बॉडी को सपोर्ट कर रहा था। तो इट इज़ नॉट कि वो वुमेन्स क्रिकेट को सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो बस एक राइवल बॉडी को सपोर्ट कर रहा था उस वक्त, जिनकी आईसीसी या इंटरनेशनल लेवल पे कोई लेजिटिमेसी नहीं थी। तो शाइजा को ऑफ कोर्स वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो जब ग्राउंड्स मांगने जा रहे थे तब उनको रोका जा रहा था। जब 97 वर्ल्ड कप पे जा रहे थे तब उनको एक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाला गया था। नाउ ये एग्जिट कंट्रोल लिस्ट बनता है हार्डकोर क्रिमिनल्स ताकि कंट्री ना छोड़े। तो ये जब शाइजा को पता चला और वो लाहौर से डिपार्ट होने वाले थे दिल्ली के लिए, वो लोग ओवरनाइट एक दौड़ कर वो लोग कराची आए, कराची से वो दिल्ली पहुंचे। तो ये सब चीज़ें सीक्रेटली तुम कंट्री एस्केप कर रहे हो जस्ट टू प्ले क्रिकेट, तो वो इस हालात में थी पाकिस्तान क्रिकेट। यस, लाइक बेसिकली लाइक इंटरनल पॉलिटिक्स और जो रिफ्ट थी, लाइक राइवलरी ऑफ डिफरेंट फैक्शंस, उसने सॉर्ट ऑफ थोड़ा हैम्पर किया जो डेवलपमेंट थी। लाइक अगर एक ही बॉडी होती तो दे वुड हैव बीन लाइक अ बेटर चांस ऑफ ग्रोइंग एंड स्प्रेडिंग द गेम। और जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज हैं या जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो शायद ज़्यादा फेस ना करने पड़ते। सो फ्रॉम मूविंग ऑन कि लाइक दिस वाज ऑल अ स्ट्रगलिंग पार्ट, जिसमें एक अलहदा पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक जिसमें डिफरेंट टीम्स हैं जो कि उन एक को पीसीबी सपोर्ट कर रहा है, एक को जो एक्चुअली जिन्होंने वुमेंस क्रिकेट के लिए काम किया है लाइक शाइजा एंड शमीन, उनकी टीम है और उन्होंने उसके लिए बहुत प्लेयर्स भी कुछ डेवलप कर लिए हैं। लाइक देवर लाइक किरण बलोच, इफ आई एम नॉट राइट, साजिदा इकबाल, साजिदा शाह एज वेल, like these were the players who were coming up, like उसमें और भी नाम होंगे, like I don't remember all of them, but like ये जो जरा चीदा प्लेयर्स जो कि बहुत prominent थे, जिन्होंने potential show किया था, but like till 2005 और ये जो सारा था, इसमें जो अगर मैं आपसे बात करूँ एक इंडिया का पर्सपेक्टिव थोड़ा इसमें पूछ लूँ कि इंडिया भी हमारे जैसी ही सोसाइटी है, बहुत डिफरेंस तो नहीं है बट थोड़ा बहुत यानी वहाँ पे ज़्यादा आज़ादी, आई वुड से, इन द सेंस कि वहाँ पे डेमोक्रेसी रही है, उस तरह फलती फूलती रही है, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है। तो उसी दौरान जब पाकिस्तान में वुमेन्स क्रिकेट को कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई उनके लिए पाथवे नहीं था ग्रो करने का, तो इंडिया में क्या रुझान था? लाइक वाज इंडिया आल्सो सॉर्ट ऑफ डूइंग टेकिंग स्टेप्स टू सपोर्ट देम, या वहाँ पे भी इसी तरह के मसले थे फेस करने लिए? इंडिया के अलग मसले थे इंडिया में, मतलब लोग सपोर्ट करने बहुत है 1970s से। सुनील गावस्कर, बहुत सारे क्रिकेटर्स सपोर्ट करते थे। उनका मसला था फाइनेंस उनको उतना नहीं मिलता था थ्रू द डायरेक्ट बॉडी, और बीसीसीआई को वुमेन्स क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये एकदम अलग सा केस था जहाँ पे पाकिस्तान में 3 बॉडीज रेडी थे क्रिकेट चलाने के लिए, इंडिया में कोई रेडी नहीं था। और जब मर्जर भी हो रहा था, इंडिया ने सबसे लास्ट बोर्ड थी जिन्होंने एक्सेप्ट किया ये मर्जर, क्योंकि उनके अलग फोकस थी, उनको वुमेन्स क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था। और जब वो जो चला भी रहे थे, बहुत उनके आइडियाज़ नहीं थे वुमेन्स क्रिकेट को लेकर ज़्यादा, तो वो लोग कभी स्टॉप नहीं करते थे। पर आप देखोगे 1970 से एडिटोरियल कार्टून्स भी मिलेंगे जहाँ पर वुमेन क्रिकेटर्स को मॉक किया जाता था।
कि ये कोई ऐसा हॉबी प्ले है कि इनके लिए ड्रिंक्स ब्रेक पे लिपस्टिक लेकर आ जाओ। तो ऐसे सारे कार्टून्स बनते थे जो पब्लिश होते थे बाय न्यूज़पेपर्स, वेरी क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स। तो वहाँ पे मसले अलग थे, लेकिन वहाँ पर भी आपको कोई एक्ट्रेसेस मिल जाएंगे, कोई क्रिकेटर्स मिल जाएंगे। जैसे मंदिरा बेदी एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने फ्री में एक शूट किया था फॉर हर ब्रांड उस समय, एंड उसके जो पैसे थे उन्होंने अपने लिए नहीं रखे, बोले कि ये प्लेयर्स को दे दो। तो ऐसे छोटे मोटे हेल्पिंग हैंड्स मिलते थे, पर प्रॉब्लम ये हो गया था कि फंड्स की कमी हो गई थी चलाने के लिए क्रिकेट। तो इंडिया के अलग मसले थे, बिकॉज ये जो सोशल इश्यूज जो बोलोगे वो शायद रहेंगे इंडिया में, पर आपको बस आबादी इतनी बड़ी है, पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि इवेंचुअली आपको मिल जाएंगे 20, 30, 600 लड़कियां जो क्रिकेट खेलना चाहती है। वहाँ पे एक बहुत रोबस्ट एक ये भी होता था डोमेस्टिक कंपटीशन बिटवीन द इंडियन रेलवेज एंड द इंडियन एयरलाइंस, बिकॉज उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते थे। तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स सारे टॉप क्रिकेटर्स को लेते थे। तो एक एनुअल कंपटीशन फॉर मेनी इयर्स वो चला उन दोनों के बीच में। तो ये सब ग्रास रूट लेवल पर बहुत कुछ था, पर फंड्स की थोड़ी कमी थी। वो एक इशू था एट अ इंडिया नेशनल लेवल। लोकल लेवल पे अब पता नहीं मसले क्या होते हैं। सो लाइक पाकिस्तान का तो मसला ये था कि ग्रास रूट्स या कोई मैकेनिज्म क्रिएट ही नहीं नहीं था। था कि जो क्रिकेट जिसके थ्रू लड़कियां या ख़वातीन खेल सकें। बट इंडिया में एक एटलीस्ट ग्रास रूट्स पे क्रिकेट होती थी। एट द नेशनल लेवल भी क्रिकेट टीम थी, सब कुछ था, बट इट वाज मोर ऑफ द फाइनेंशियल साइड। Yeah. जो कि सो जस्ट टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव के वो जो एक डिवाइड था कि लाइक सॉर्ट ऑफ के वहाँ पे एटलीस्ट टीम एग्जिस्ट करती थी, उनके पास प्लेयर्स थे, सारा कुछ था। बट यहाँ पे तो ऑल टुगेदर वो एग्जिस्टेंस ऑफ द टीम भी बहुत लेट हुई, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली लाइक द ग्रोथ वुड बी फार स्लोअर। सो कमिंग ऑन लाइक 2005 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो मर्ज हो जाता है वुमेन्स क्रिकेट काउंसिल जो थी पहले एग्जिस्टिंग, एंड उसके बाद से फिर आईसीसी के अंडर आ जाता है। सारे बोर्ड्स के लिए मैंडेटरी हो जाता है जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है कि आपकी वुमेन्स टीम भी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर ओवर द इयर्स वी हैव सीन हाउ आईसीसी ने बेशक थोड़ा ही बट थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कि उनके वर्ल्ड कप्स होने शुरू हो गए, T20 वर्ल्ड कप्स, ODI वर्ल्ड कप्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो a little about that कि once it was कि ICC you had to maintain a women's team। तो उसके बाद से लेके लाइक उसके बाद भी लाइक देयर वाज लाइक कुछ जगह थी, लाइक कनेट कॉलेज थी या लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन था, इसी तरह कराची में कुछ जगह थी जहाँ पे थोड़ा बहुत उनकी टीम्स थी। बट उसके अलावा लाइक ग्रास रूट्स पे एज सच उतना काम शुरू में नहीं हुआ। लाइक वी हैव सीन ऑफ लेट के पीसीबी हैज़ गिवन अटेंशन टू दैट, बट उससे पहले का जो ज़माना था उसमें क्या कोई पीसीबी ने एक्चुअली कोशिश की कि वो गेम को स्प्रेड कर सकें या ग्रास रूट्स पे कोई स्ट्रक्चर या कुछ बना सकें? पीसीबी कोशिश करती रही है। जो कोशिश तब कर रहे थे तभी भी काफ़ी चेंजेस आए थे इनिशियल ईयर्स में, वो अभी भी कोशिश कर रहे। प्रॉब्लम ये है कि चेयरमैन बदलते जाते, वुमेन्स विंग के हेड बदलते जाते। तो 2 साल कुछ ट्राई आउट करते, फिर रियलाइज करते अरे ये नहीं चल रहा है, कुछ और लेकर आते। तो पाकिस्तान क्रिकेट का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना फैसिनेटिंग है कि इट इज़ बियॉन्ड स्टडी। लाइक आप जाकर देखोगे ये साल एक टूर्नामेंट था, अगले साल वो टूर्नामेंट गायब हो गया, अगले साल कुछ और ऐड हो गया, बीच में आप देखोगे सडनली आधी लड़कियां गायब हो गई पूरे स्ट्रक्चर से। बिकॉज एक नया चेयरपर्सन आता है, उनको लगता है कि कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। बिकॉज ये भी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई रिसर्च पेपर नहीं है जिसके बेसिस पे आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हो, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं। बस कोई एक नया चेयरपर्सन आ जाता है या वुमेन्स विंग की कोई हेड आ जाती है, उनको लगता है अरे मुझे लगता है कि शायद ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ करते हैं, वैसा कुछ करते हैं। तो वो हर 2 साल में बदलता जाता है, तो कोई कंटिन्यूटी नहीं है। आप करना क्या चाह रहे हो, आपका लॉन्ग टर्म फोकस क्या है, बहुत एड हॉक डिसीजंस ले रहे हैं, जिसके कारण चेंजेस अभी भी आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है, पर आप रियलाइज करोगे 2 साल बाद ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कुछ और आ जाएगा। तो जैसे अभी भी पता नहीं कुछ चेंजेस वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर चेंजेस भी लाने की कोशिश कर रहे हैं एट बोथ एट द स्ट्रक्चरल लेवल, एट द ऑफिस लेवल एज वेल। तो वो बैकफायर कर जाएगा, कोई नया आएगा वो ये स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट नहीं करेगा शायद। तो Yes. यू नेवर नो। Like continuity of system does not System है ही नहीं। yes, मतलब like it changes every few years, and we have seen like women's cricket जो कि इतनी देखी भी जाती है, उसको सारी सपोर्ट आई बॉल्स भी मिलती हैं, उसमें हम अभी तक कोई एक प्रॉपर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर सके। तो
वुमेन्स क्रिकेट में, तो उसको तो ज़्यादा लोग उसकी तवज्जो भी नहीं हाँ देते और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है हाँ लोग का तो इंटेंशन सही है पर आइडियाज थोड़े बैकफायर कर सकते, कंटिन्यूटी नहीं होगी तो नो मैटर आपके इंटेंशन कितने अच्छे हैं वो नहीं वर्कआउट करेंगे। बीच में एक उनका कॉन्सेप्ट आया था कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाना है, तो उन्होंने क्या कर दिया, आधे प्लेयर्स को ही निकाल दिए। ये इंडिया में एक पॉलिटिकल कार्टून चलता है, मिनिस्टर अपने एडवाइजर को बोलता है कि गरीबी कैसे हटाए, तो एडवाइजर बोलता है गरीबों को हटा दो गरीबी हट जाएगी। ये वैसे सिस्टम को स्ट्रांग कैसे किया जाएगा, वीक प्लेयर्स को हटा दो। वीक प्लेयर्स को हटाना आपका काम नहीं था, उनको स्ट्रांग करना आपका काम था। यस तो आपने सारे वीक प्लेयर्स को हटा दिया और बोल रहे हो अभी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाएगा यस कंपटीशन। यस तो वैसे तो नहीं वर्कआउट, मतलब यस वो इंटेंशन सही है पर कॉन्सेप्चुअली वो शायद वर्कआउट ना करे ये लाइक सब डोमेस्टिक चीजें। क्रिकेट का तो पर्पज ही है कि जो वीक खिलाड़ी हैं उनकी गेम खेल खेल के इम्प्रूव हो और हाँ फिर ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में या जब जाए तो वहाँ पे अच्छा compete यस, कर सकें। इनफैक्ट अभी भी बहुत बहुत कुछ बस दिखाने के लिए दिखावा हो जाता है। बट नाउ लाइक कमिंग टू लाइक उसके बाद फिर हम्म, क्रिकेट हैज चेंज, हमने मेन स्ट्रीम हो गया। उसके बाद आईसीसी का भी थोड़ा लगा कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जो है वो हम्म, रेगुलरली करवाना शुरू कर हम्म, दिए, उसमें हम्म, ज़्यादा टीम्स भी लाइक अभी भी उसमें लाइक अभी होना है इस साल T20 हम्म, वर्ल्ड कप, उसमें अभी पहले हम्म, से ही है कि पहले भी कम टीम्स हैं लाइक हम्म, आयरलैंड हम्म, और जिम्बाब्वे, हम्म, इस तरह की टीम्स हैं जो कि हम्म, डिजर्व करती थी कि हम्म, वर्ल्ड कप खेल हम्म, सकें। बट ये क्रिकेट का एक मसला रहा है लॉन्ग स्टैंडिंग, हम्म, मेंस का हम्म, वुमेन्स का, कि गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि हम्म, ग्रोथ ना हो सके या उस हम्म, तरह के इश्यूज हैं। बट कमिंग के क्रिकेट जो है वो चेंज हो रही थी, हम्म, जिस तरह हम्म, वर्ल्ड कप्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसमें फिर प्राइज मनी और सारा कुछ आ रहा था, तो हम्म, हमने देखा कि बाकी दुनिया ने तो फॉर इंस्टेंस इम्प्रूव करना शुरू हम्म, कर दिया, उसको तवज्जो देनी शुरू कर दी, हम्म, लाइक इंडिया या हम्म, श्रीलंका, हम्म, वहाँ पे जो हम्म, वेजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। हम्म, बट पाकिस्तान में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आई। हम्म, सो लाइक वाई उसका एक मसला तो चेंजेस है, सिस्टम है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसका कोई जो ब्रॉडर इश्यूज हैं लाइक उनको कैसे ब्रिज करेगा, बिकॉज वी कंटिन्यूसली सी, या एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये होती है कि अभी गेम्स टेलीवाइज भी होने लग गए हम्म, हैं, तो लोग देखते हैं कि यार ये तो टीम हार जाती हम्म, है, लाइक 7 मैचेस खेले हैं तो उसमें से हम्म, 6 जीते हम्म, हैं, हम्म, एक जीत गया, तो वो होता है कि इनकी जो टीम ही बंद कर देनी हम्म, चाहिए, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के from where they are coming, there are या no proper coaches, there is या no proper system, so a little light on हाँ। all of that. तो अब आप मुझे बताइए, अब टेक्निकली 9 टीम्स है जो compete करती है एट अ ग्लोबल लेवल। आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आयरलैंड, थाईलैंड, जिम्बाब्वे एंड ऑल, बट ग्लोबल लेवल पे 9 टीम्स है जो compete कर रही है। अभी इन 9 टीमों में से ऑस्ट्रेलिया तो बहुत आगे है, वो दे आर ग्लोबल लीडर्स इन ऑन मेनी फ्रंट्स। इंडिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड ऑफर इक्वल पे men and women को for match fees. South Africa and West Indies have committed to equal pay. श्रीलंका $750 पे करती है प्लस अ $250 बोनस अगर आप मैच जीत जाए। बांग्लादेश जो पे करती है रफली 2,40,000 इफ यू कन्वर्ट इट इनटू पाकिस्तानी रुपीज। पाकिस्तान ये सबसे पीछे। नाउ यू आर ऑफरिंग, वो भी पेमेंट बताऊंगा नहीं बिकॉज पाकिस्तान बोर्ड कभी पेमेंट नहीं बताती अपना, वो बस बताती है 100% हाइक कर रहे हो, जा जाकर अब इन सबसे पीछे। यू आर द 9th वर्स्ट पेइंग टीम। तो अगर आपको 9th वर्स्ट पेइंग टीम बनना है, अगर आपको गेम गेम के बारे में बात करते हैं, ये हुआ पे की बात। अब मैं बताता हूँ क्वालिटी ऑफ गेम। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के पास ऑलरेडी लीग्स अवेलेबल है, तो क्वालिटी ऑफ कंपटीशन ऑलरेडी हाई है। बांग्लादेश को 25 डेज ऑफ क्रिकेट मिलता है, न्यूजीलैंड को 22 मिलता है, पाकिस्तान को 21 मिलता है और साउथ अफ्रीका को 16 मिलता है। सो पाकिस्तान टेक्निकली इज द 8th बेस्ट गेम टाइम, पर उसमें भी साउथ अफ्रीका के पास 16 टीम्स है, उनके पास 7 टूर्नामेंट्स है, उनका पाथवे स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रोबस्ट है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। एंड उनके प्लेयर्स अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका के, दे आर इन डिमांड इन द इंडियन लीग, दे इन डिमांड इन ऑस्ट्रेलियन लीग, इन इंग्लिश लीग। तो इनके आधे से ज़्यादा प्लेयर्स ऑलरेडी बाहर खेलते हैं, तो क्वालिटी ऑफ कंपटीशन उनको जो मिलता है वो पाकिस्तान से बेटर है। तो अगर आप उनको 9th बेस्ट पे दोगे, 9th बेस्ट फैसिलिटी दोगे, for a board that is the 4th highest earning board, ideally if you're the 4th highest earning board, at least can you give them the 4th best pay and the 4th best facility. अगर आप 9th बेस्ट दोगे तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू बी एनीथिंग बेटर देन 9th? अगर वो 8th या 7th आ रही है, दे आर डूइंग बेटर देन व्हाट दे आर ऑफर्ड। तो ये एक मसला है, और ये मसला ना प्रॉब्लम हो रहा है कि ग्लोबली वो जो बोल रहे हैं इनको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में क्या है, ग्रास रूट्स में क्या है, अगर फंडिंग ही ना हो उसकी तरफ, वुमेन्स क्रिकेट की तरफ,
तो ये वुमेन से आकर करेंगी भी क्या, दे आर प्लेइंग अराउंड विद लिमिटेड फंड्स। तो बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है कि हम 5 स्टार होटल में रुकवाते हैं, हम बिजनेस क्लास ट्रैवल करवाते हैं अगर 4 घंटे से ज़्यादा हो तो, कंडीशन अप्लाइड। तो बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें होती है, पर उनका रियल इफेक्ट ऑन द गेम वो कोई बताएगा नहीं। अभी गेम टाइम से क्या होता है, मैं उस दिन भी बता रहा था कि एक 16 साल की लड़की जब पाकिस्तान से आएगी और एक 16 साल की लड़की जब इंडिया से आएगी, इंडिया वाली को नॉट ओनली उसको डबल द गेम टाइम मिलेगा, बट ऑल्सो हायर लेवल ऑफ कंपटीशन। वो एक ड्रेसिंग रूम में भी बैठी रहेगी WPL में, उन्हें जैसे ये थी पार्श्वी चोपड़ा थी इंडिया की जो स्पिनर है, प्रॉमिसिंग स्पिनर है, अब तक इंडिया के लिए खेली नहीं है, पर उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है 3 हफ्ते के लिए अलीसा हीली के साथ। उन्होंने किया जो वर्ल्ड की बेस्ट विकेट कीपर बैटर है, सोफी एक्लस्टन वर्ल्ड की बेस्ट स्पिनर, शबनम इस्माइल वर्ल्ड की बेस्ट फास्ट बॉलर, ग्रेस हैरिस वर्ल्ड की बेस्ट पावर हिटर, इन सबके साथ चमारी अटपटू अलग। तो इन सबके साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम 3-3 हफ्ते हर साल शेयर करेगी, उन्हें इतना पैसा मिलेगा, उनके पास बेटर क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ट्रेनर होगा, पावर हिटिंग कोचेस भी हो सकते, तो उनके पास फंड्स है अपने गेम को डेवलप करने को। तो बाय द टाइम वो दोनों 22 के होंगे और इन अपने अपने टीम्स के लिए सिलेक्ट होने के स्टेज पे होंगे, एक का क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सपोजर दूसरे से काफ़ी हाई नेचुरली हो जाएगा, बिकॉज ये तुम्हें सिस्टम फीड करता है। एंड पाकिस्तान का एक और इशू है, इफ सोशल इश्यूज है जो मैं मान सकता हूँ कि शायद तुम्हारा बोर्ड पूरी तरीके से ये ना कर पाए, हटा ना पाए, पर वो क्या कर रहा है टू एंश्योर कि अगर सोशल इश्यूज के बाहर कोई आ पाए, उनको क्या स्ट्रक्चर मिल रही है जिससे वो डेवलप कर सकते हैं। अभी आप श्रीलंका में जाओगे, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि वहाँ का सबसे फेमस एथलीट इज चमारी अट्टपट्टू। मेन वुमेन, रास्ते के किसी भी इंसान को पकड़ लो और पूछ लो यहाँ का आपका फेवरेट एथलीट कौन है, वो बोलेंगे चमारी अट्टपट्टू। वो इतनी फेमस हो चुकी है पाकिस्तान में। तो मैं उस दिन चल रहा था एट एन इवेंट वेयर बिस्मा मारूफ हैज बीन कॉल्ड टू स्पीक ऑन वुमेन्स क्रिकेट। लोग उनसे पूछ रहे हैं आप कौन मैडम, बिस्मा मारूफ से उनका इंट्रोडक्शन मांगा जा रहा है एट एन इवेंट जहाँ पे उनको इनवाइट किया बात करने के लिए। तो ये फर्क है। तो अभी ये प्लेयर्स अगर जीत भी नहीं, तो आपको चाहिए कि टीम जीते, टीम जीतेगी तो तभी एक सोशल इशू कुछ हद तक शायद सॉल्व हो सकती है, जहाँ पे पेरेंट्स चाहेंगे कि उनके बच्चे भी बिस्मा मारूफ जैसे बने, या जो भी अभी करंट लॉर्ड फातिमा सना जैसे बने। तो अगर वो जीतने के लिए आपने स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड नहीं किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोशल इश्यूज कैसे हटाओगे, दूसरा आपकी टीम कब तक आप एक्सपेक्ट करोगे कि टीम जीतेगी विद बीइंग प्रोवाइडेड द वर्स्ट फैसिलिटी। तो तब तक आप फिर एक्सपेक्ट करो कि हाँ वो आयरलैंड को हरा दे, वो जिम्बाब्वे को हरा दे, वो थाईलैंड को हरा दे, उसी में खुश होना पड़ेगा तब तक। आप एब्सोल्युटली लाइक वो जो आपने बात की थी, लाइक पाकिस्तान में एक बेयर मिनिमम का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि बेयर मिनिमम को हम समझते हैं कि हम बहुत कोई तीर मार रहे हैं, हम बेयर मिनिमम पे खुश हो जाते हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम के जो हमारे रेलिवेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो बेयर मिनिमम से हट के कुछ उससे ज़्यादा करें, बिकॉज दैट्स व्हाट द रिक्वायरमेंट इज़। और जो आपने अब ये बात की लीग्स की, बिकॉज पिछले कुछ सालों में लीग्स अब आ गई हैं, वुमेंस प्रीमियर लीग आ गई है, द 100 वुमेंस है, BBL तो बहुत सालों से है, अब CPL भी वुमेंस टूर्नामेंट करवा रहा है। तो बट द इशू विद पाकिस्तानी प्लेयर्स इज़ दैट एक तो पाकिस्तान के पास अपनी लीग नहीं है, ऑल्दो हमने सुने थे प्रोमिसेस 2022 में कि जी हम वुमेंस PSL स्टार्ट करेंगे, बट वी रादर वेस्टेड दैट मनी ऑन सम अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स जो नहीं होने चाहिए थे। तो एक तो उसका मसला है, पर दूसरा मसला ये भी है कि लाइक फॉर इंस्टेंस वुमेंस प्रीमियर लीग है, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL या वुमेंस प्रीमियर लीग में दे कैन नॉट प्ले। सो हाउ डू यू फील, व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? लाइक आई नो के देर हैज़ टू बी लाइक के वो टैलेंटेड होना चाहिए खिलाड़ी को, बिकॉज इट्स अ कंपेटिटिव स्पोर्ट और टीम्स उन्हीं प्लेयर्स को पिक करेंगी जो कि अच्छे हैं, जिनकी क्वालिटी है। बट आई थिंक अगर ये पाबंदी ना हो तो फिर शायद लाइक just for like the betterment of the Pakistan cricket, 1 or 2 teams might pick, and there are few players like who can be picked by different franchise teams. So how do you think ये जो exclusion है of like not just Pakistan, but like we also saw like Chamari Atapattu also got ignored like Yeah, I for mean, for some years because he was from Sri Lanka. So like उसकी वजह से ये जो छोटी टीम्स है, फॉर इंस्टेंस लाइक जो बिग 3 से बाहर की टीम्स है, उनके साथ जो थोड़ा
नारवा सलूक होता है, या आप उसको कहें कि थोड़ा अनफेयर ट्रीटमेंट होता है. So how does it is impacting the growth of those players which are from like the countries not in the big three? साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हर बार सिलेक्ट होते हैं अक्रॉस लीग्स एवरीवेयर. वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स होते हैं सिलेक्ट. अगर आपको चमारी का भी सेम केस था कि चमारी नहीं हुई, दैट इज शॉकिंग. पर आप किसके जगह पर चमारी को लोगे? आप वही एरियाज फिल कर पाओगे जो, से फॉर एग्जांपल इंडियन लीग है, तो इंडियन लीग में वन ऑफ द वीक पॉइंट्स क्या है, वहाँ पे पेसर्स इंडिया के पास नहीं है. तो नेचुरली डिमांड होगा फॉर द टॉप पेसर्स इन द वर्ल्ड. और उसमें भी मेगन शूट के लिए जगह नहीं थी, हेदर नाइट को जगह नहीं मिली, डैनी वैन निकक आई, उन्हें खेलने को मौका नहीं मिला. तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको चांस नहीं मिला है. हेली मैथ्यूज फर्स्ट राउंड में पिक नहीं हुई थी, सेकंड राउंड में जाकर उन्हें किसी ने इंटरेस्ट दिखाया. तो गैप्स बहुत कम है, 10 लोग को आप फिट इन कर सकते हो. और ऑस्ट्रेलिया में आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो ऑस्ट्रेलिया के 11 प्लेयर्स से बेटर है? एनी ऑफ द 11 प्लेयर्स. ऑस्ट्रेलिया में एलिस पेरी को बाहर बैठना पड़ा था 2 साल पहले. तो वर्ल्ड की जो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर है, अगर उसको ही अपनी टीम में जगह नहीं मिल रही है, तो लीग्स का कॉन्सेप्ट, आई नो ये पाकिस्तान में नैरेटिव में काफ़ी सुना हो कि देयर इज़ अ बायस के अगेंस्ट आउटसाइड द बिग थ्री, पर न्यूजीलैंड के प्लेयर सिलेक्ट होते हैं, साउथ अफ्रीका के होते हैं, वेस्ट इंडीज़ के होते हैं. सो आई डोंट थिंक इट इज़ एन इशू. एंड ये एक पॉइंट आएगा कि पाकिस्तान को अपना लीग डेवलप करना होगा. आप कब तक रुकोगे कि इंग्लैंड हमारे प्लेयर्स को रेस्क्यू करेंगे, या ऑस्ट्रेलिया करेगी, या इंडिया करेगी? आपको अपना लीग डेवलप करना है, आपको अपने प्लेयर्स को पहले ग्रो करना है, उस स्टैंडर्ड पर लेकर आना है कि बाकी लोग ले, ना कि यू वेट कि बाकी लोग लेंगे तो हमारे प्लेयर्स डेवलप होंगे, तो हमारी टीम डेवलप होगी. सो वही है कि अगर फातिमा सना, अज्यूमिंग शी इज़ द बेस्ट, एंड आई एम बिग फैन ऑफ फातिमा सना, अगर फातिमा सना इज़ योर बेस्ट प्लेयर, ऐसी कौन सी प्लेयर है इन विच लीग जिनके ओवर एंड अबव आप देखते हो कि फातिमा सना कैन प्ले इंस्टेड ऑफ ये प्लेयर? वो अगर आप बता सकते हो कोई फॉरेन प्लेयर से बेटर है जिनको किसी भी लीग, 100 हो या बीबीएल हो या सीपीएल हो, या इवन सीपीएल मे बी, बट सीपीएल में आई थिंक फातिमा Or the सना, super smash फातिमा सना, या or the super smash and the या नहीं, क्योंकि आप देखोगे वो इवेंचुअली वही 10-15 लोग ही अक्रॉस द वर्ल्ड. सो इफ यू आर अमंग द 10-15 बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, ओनली देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एज अ फॉरेन प्लेयर कि आप वहाँ फिट इन हो सकते हो. तो WBBL में तो छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया के पास ही 15 आ जाएंगे, तो बाहर के जो फॉरेन प्लेयर्स है बाकी टीम में से, अगर आप उन 15 में से हो, देन शायद आपको चांस मिल सकता है. द अदर वे आउट इज कि जब फॉरेन कोचेज आते हैं और फॉरेन कोचेज आपके साथ वर्क करते हैं और उनका कोई WBBL के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है या 100 के साथ, उनको कुछ पता है आपके बारे में जो शायद एज एन आउटसाइडर किसी को पता ना हो, तो वो सिलेक्ट करते हैं आपको कि हाँ मुझे ये चाहिए. तो ऐसा हो सकता है कि फातिमा सना के साथ जो काम करे कोई फॉरेन कोच आए या जो पाकिस्तानी कोच वहाँ पे जाकर काम करे, उन्हें पता है एग्जैक्टली व्हाट इज द ब्रिलियंस ऑफ फातिमा सना एंड आई वांट हर ओवर एंड अबाउट समवन एल्स. तब जाकर चांस बनता है. अदरवाइज वो विंडो लिमिटेड है. अगर आप वो 10-15 बेस्ट क्रिकेटर्स में से हो तो ही आपका शायद चांस बनेगा. And now, just to explain to like the administrators in Pakistan or the fans or whoever like exists, like how important the league is like for Pakistan for women's cricket. Like you can give it, explain it in terms of like how the women's Premier League is changing Indian cricket and how much money it has brought in. So like if you could just explain it, if Pakistan develops a league or how it is in Pakistan's own गुड के पाकिस्तान की अपनी भलाई इसमें है कि पाकिस्तान एक वुमेंस लीग डेवलप करे, बिकॉज उससे आपके खिलाड़ियों को एक तो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा और क्वालिटी क्रिकेट खेलने का चांस मिलेगा और इम्प्रूव करने का चांस मिलेगा बाय टेलिंग लाइक हाउ वुमेंस प्रीमियर लीग इज चेंजिंग इंडियन क्रिकेट. सो फर्स्ट एंड जस्ट बिफोर आई गेट इनटू दैट, जस्ट टू एक्सप्लेन ये इशू क्या हुआ है ना, जब से ये मर्जर हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड्स उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट को एज अ CSR एक्टिविटी लिया है. एक छोटा सा फंड अलॉट करेंगे. दे हैव नॉट टेकन इट कि हमें मेंस क्रिकेट भी चलाना है, वुमेन्स क्रिकेट भी चलाना है. वुमेन्स क्रिकेट को बस थोड़ा फंडिंग पे चलाते रहे. एंड ये मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड्स ने कि अब जाकर काफ़ी बोर्ड्स आए जिन्होंने प्रॉपर उसकी तरफ वर्क किया. एंड मैं लिटरली 1-2 बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, नॉट मोर देन दैट. एंड इट्स नॉट जस्ट मैच फी, वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, इक्वल गेम टाइम होता है. आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में पैंडेमिक के दौरान जब उनके पैसे भी खत्म हो रहे थे, उन्होंने WBBL करवाया.
लॉस तो लॉस, पर उन्होंने वो WBBL का सीज़न करवाया। तो पाकिस्तान अब तक वहाँ उस लेवल तक पहुंची ही नहीं है कि उन्होंने वो दिखाया है कि वुमेन्स क्रिकेट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज मेंस क्रिकेट। तो इंडिया भी अब तक फुली वहाँ तक पहुंची नहीं है, बिकॉज गेम टाइम और इसमें अभी भी थोड़ा गैप है कॉन्ट्रैक्ट्स में, बट देर समवेयर क्लोज टू रीचिंग दैट पैरिटी। तो इंडिया में अभी आप देखोगे WPL में देर वॉज एन एप्रीहेंशन कि शायद उतने पैसे ना आए। आज के दिन WPL इज द सेकेंड मोस्ट अर्निंग लीग इन द वर्ल्ड, above men's BBL, above men's PSL, above every other league in the world, because एडमिनिस्ट्रेटर्स ने दिखा है, तब आपको दिखा कि ब्रॉडकास्टर्स इंटरेस्टेड है, स्पॉन्सर्स इंटरेस्टेड है, मे बी शायद दे माइट प्रॉबेबली रन इन लॉसेज, आई डोंट नो, फॉर अ फ्यू ईयर्स, पर टीम्स ने तो पैसे बना लिए, बोर्ड ने पैसे बना लिए, क्रिकेटर्स ने पैसे बना लिए। आज के दिन स्मृति मानधना जो अर्न कर रही है वो 100 का इट्स 10 टाइम्स ऑफ व्हाट शी इज अर्निंग जस्ट थ्रू WPL। तो अभी आप देखोगे कि इनके लिए ये बहुत इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। जिन लीग्स के लिए हमारे प्लेयर्स भी, इंडिया के प्लेयर्स भी तरस रहे थे वहाँ पे खेलने के लिए, वहाँ पे अभी वो लीग्स पे जो पैसे मिल रहे हैं अभी वो भी इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्राउड्स आप देखोगे 25, बैंगलोर वॉज पैक डे इन एंड डे आउट, एंड वो शहर ऐसा है जहाँ पे आपको घर से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, इतना ट्रैफिक होता है वो एरिया में। पर डे इन एंड डे आउट, वेदर उनकी होम टीम खेल रही है या नहीं खेल रही है, WPL के लिए जैम पैक्ड स्टेडियम्स हो रहे थे। इंडिया के जो मैचेस हुए काफ़ी सारे फुल स्टेडियम्स, 25-30,000 पीपल टर्निंग अप। ये सब नहीं था 4-5 साल पहले। आप देखोगे देयर वाज 0, 10, 15, 100 पीपल एट मैक्स टर्निंग अप फॉर वुमेन्स गेम। आज आई एम पर्सनली विटनेस टू दिस। गाँव में गया हूँ मैं, रिमोट विलेजेस में, वहाँ पे लोग एलिस पेरी के फ़ैन बन रहे हैं। आई वुडेंट हैव इवन अज्यूम्ड कि वहाँ पे कोई जानता होगा एलिस पेरी कौन है, ये वुमेन क्रिकेटर्स कौन है। पर अब बहुत रिमोट रीजन्स में ये बात पहुँच चुकी है कि वो क्रिकेटर्स कौन है, वो देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं ये सब गेम्स। व्यूअरशिप ऑफ कोर्स इंडिया में थोड़ा हाई ही है। सो ये द डे बोर्ड ने पूरा इंटरेस्ट दिखाया, दे वेंट ऑल आउट ऑन दिस, दे रियलाइज ब्रॉडकास्टर्स आ गए, स्पॉन्सर्स आ गए, फैंस भी आ गए, सिर्फ पूरा सिस्टम रेडी है। क्या आप रेडी हो उस चीज़ के लिए? Yes, so like just for the administrators in Pakistan, that this is what India is doing and how it is changing the Indian women cricket. So we need to do more of that in Pakistan, or at least follow suit. वरना फिर हम बहुत, जिस तरह मेंस क्रिकेट में भी बहुत पीछे रह गए, वुमेन्स क्रिकेट में और हम पीछे रह जाएंगे, बिकॉज वी आर सीइंग दैट हाउ मच श्रीलंका हैज इम्प्रूव्ड इन द recent years with like अभी एशिया कप जीते हैं, and Ireland how they are progressing. So like more other boards, because वहाँ पे एक ये है कि consistent system है और एक structure है, तो they will progress ahead and we will be left behind far much than the other boards. So one last thing that I want to ask you about was like your favorite anecdote from the book that you would like to tell, or something that you really enjoyed writing over the course of this book. सबा नज़ीर की कहानी। Okay. एक लड़की जिसके फैमिली में बाहर निकलना भी विदाउट अ मेल accompanying them was not allowed, जिन्हें टेंथ के एग्ज़ाम के बाद उन्हें शायद शादी करनी होती थी, वो पढ़ाई का ज़िद पकड़ी, उसने उसके कारण क्रिकेट खेला। अब क्रिकेट खेलने के लिए उसे थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता था बस में, लेकिन उस बस में लड़कियां नहीं ट्रैवल करती थी, तो उसने अपने बाल काटे तो फैमिली की इज्जत पर आ गई बात, मार खाई, ग्राउंड किया गया उसे, वो छुपकर फिर भी भागती रही खेलने। और जाती थी तो पैसे नहीं थे, इतनी लो मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, तो 5 रुपए लेकर जाती थी। वो बस में टिकट नहीं कलेक्ट करती थी जस्ट सो दैट वो 5 रुपए बचाए और एक नान को बस पानी में डिप करके वो ज़िंदा रहे और अपना क्रिकेट कंटिन्यू करे। लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस चलती थी, डायरिया हो गया था उसे, टाइफॉइड सॉरी, उससे वो कॉन्स्टेंटली होता था बिकॉज उसका फूड इनफ न्यूट्रिशन नहीं थी, हाइजीन लेवल्स लो थे। पर उसने एक अपना सपना पूरा कर दिया। एक मैच खेली, 2 मैच खेली है शायद अब तक पाकिस्तान के लिए, लेकिन सपना पूरा किया। ये जो पूरी फाइट लगाई है, एंड पेरेंट्स को फाइनली जो जिस बात से उन्हें शर्म आती थी कि लड़की क्रिकेट खेल रही है,
उसी बात का उनको इज्जत मिली जब लोगों ने तारीफ करना शुरू शुरू की, जो वो छुप छुप कर खेलती थी अपने घर पे, अपने घर के छत पर, क्योंकि नीचे वो देखती थी अपने भाई लोग खेलते थे उनके दोस्तों के साथ, तो शैडो प्रैक्टिस करती थी घर पे, और वो भी छुप छुप कर करती थी, कोई देखे नहीं कि वो शैडो प्रैक्टिस कर रही है, बिकॉज इट्स एन अनवुमेनली एक्ट टू डू दैट। तो उसकी जो कहानी है ऑफ हर फाइट टू लिव हर ड्रीम, वो अब तक मैं कितने बार वो सुनता हूँ वो रिकॉर्डिंग, वो अब अभी भी रुला देता है मुझे। Excellent, very moving story. So you all must read this book. It's a very good book. It's available in stores in Pakistan, and hopefully आप इसको पढ़ें. और just to end the show on the note that के पाकिस्तान में आई थिंक जो सोसाइटल हमने बात की उसमें तो थोड़ा चेंज आया है ओवर द इयर्स, और लोग खेलना चाहते हैं क्रिकेट, वुमेंस क्रिकेट खेलना चाहती हैं, लड़कियां क्रिकेट खेलना चाहती हैं, बट इट्स मोर अबाउट कि उनके लिए आप स्ट्रक्चर्स बनाएं, उनको बेहतर फैसिलिटीज़ दें, उनको बेहतर फाइनेंशियल हेल्प दें, ताकि उनके लिए जो भी ये रुकावटें हैं वो कम हो सकें, रादर दैन कि हम उनके लिए आसानियाँ मुश्किलें बनाएं, हम उनके लिए आसानियाँ जितनी बनाएंगे इट विल बी बिकम ईजियर फॉर देम टू प्ले क्रिकेट. Thank you once again, Ayush, for being on the show, taking out your precious time. This was all from this TPS episode. होपफुली आपको पसंद आई होगी. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस. अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.